Hello everyone, let's continue our chapter weather, climate and adaptation of animals to climate. Okay, we have studied about weather, we have studied about climate. We know the terms, now we know the terms weather and climate in a scientific form. कि क्या उनकी मेन डेफिनेशन क्या होती है. हमने वर्ड्स तो सुने हुए हैं. We know what is the meaning of weather, what is the meaning of climate. But according to definition, what is weather, what is climate, how can we calculate weather reports, or you can say collect weather reports. Okay, there is a department for that. Now we will discuss about adaptation of animals to climate. In this module, we will discuss about adaptations. Then we will discuss about adaptations in polar regions. Okay, polar bears, penguins, polar birds, which easily live in, you can say, which can easily live or adapt the environment of polar region. Okay, then we will study about what are the adaptations of tropical rainforests. Again, the animals which live in tropical rainforest, we will study about the adaptations of those animals. Now let's start with the adaptation. What is adaptation? Basically, adaptations are related to climate, because climate has a profound effect on all the living organisms. That means that the changes in the environment influence both biotic as well as abiotic living organisms. Biotic means physical factors like soil, water, your sunlight. These are the biotic factors. And the abiotic factors are what? These are living organisms. Living components को हम abiotic factors कहते हैं. ठीक है. Now plants and animals, they are living and their response to the changed condition either get extinct or make some fine adjustment. जैसे कि या तो वो एक्सटेंट हो जाते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, या फिर वो क्या हो जाते हैं, उनको अगर एडजस्टमेंट्स प्रॉपर वो अपनी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. यानी अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है और वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकते तो दे माइग्रेट टू अदर प्लेस. ओके, एंड सिमिलरली अगर उनको सर्दी, अगर वो कोल्ड क्लाइमेट में रहने के हैं तो दे माइग्रेट टू द अदर प्लेस इफ देयर इज अ हॉट सीजन. ओके, द दीज टाइप्स ऑफ सर्वाइवल्स, these types of fine adjustment for survival in changing environment, that is called as adaptation. Or you can define adaptation as a modification of living organisms or its parts that makes it more fit for survival under changed environment. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, अगर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, या दे माइग्रेट फ्रॉम, एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स तो माइग्रेट नहीं हो सकते, बट डिपेंड्स, फिर वो प्लांट्स वहां पर वैसे ही अडेप्ट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स लगाए जाते हैं जो आपके उसके अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं. तो दैट मीन्स एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स on its parts in order to make it more fit for survival under changed environmental conditions. Now animals living in very cold climate, जो बहुत cold climate में रहते हैं, and a very hot climate, they have a special features. उनके कुछ special features होते हैं जिनके जो ना ज्यादा cold में रहते हैं ना ज्यादा hot में रहते हैं, वो सब जगह survive कर सकते हैं. But जो very cold climate and a very hot climate, they have the special features to protect them from heat and cold. Is it okay? Now let's study about polar regions. Adaptations in polar region. Polar region मतलब बहुत ठंडा एरिया जिसे कहते हैं. ठीक है ना? That is covered with, most of its parts with covered with snow. जहाँ पे बहुत बर्फ होती है. That is called as polar region. Okay, that their temperature must be low then. वहां पर टेम्परेचर जो होता है that is -37 डिग्री सेल्सियस. तो आप सोच रहे होंगे आपने इग्लू वाले हाउसेस जो देखे हैं या आपने स्नो देखी है, तो that is what? That is a polar region. For 6 months the sun does not rise. 6 महीने तक वहां पर सन उगता नहीं है. ठीक है, and the other 6 months sun does not set. यानी 6 महीने दिन रहता है वहां पे और 6 महीने रात रहती है वो. That is called as, that is a fact of polar region. And the animals found in polar region are musk, oxen, penguins, then polar bears. These types of animals are found there. Whales, Siberian crane. ठीक है, many other types of fishes that will found in the polar region.
नाउ विल टॉक अबाउट अडेप्टेशन ऑफ बियर्स इन, और यू कैन से पोलर बियर। आपने पोलर बियर पिक्चर्स में देखा होगा, आपने पोलर बियर को टीवी में या डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा। दैट इज व्हाइट इन कलर, उसकी फर जो होती है बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है। अब हम उसकी अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इस फर का, या उसके अंदर वो वहां पर स्नो में रहते हैं, वो बेसिकली पोलर रीजन्स में रहते हैं, तो वो कैसे एकदम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव अ व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो, सो दैट कि वो अपने प्रे के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर उसको पकड़ने में वो उसमें छुप जाते हैं, स्नो में अच्छे से अपने आप को हाइड कर लेते हैं, एंड दे कैन इजिली कैच, हेल्प्स इन कैचिंग द देयर प्रे। ये व्हाइट कलर उनको इसी चीज में हेल्प करता है। सेकेंडली, दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर टू प्रोटेक्ट, वन इज अपर लेयर, वन इज लोअर लेयर। दैट मीन्स उनकी बॉडी के नीचे का पोर्शन एक होता है, क्योंकि वो स्नो में रहते हैं, तो देयर इज अ ब्लबर, इंसुलेशन पार्ट जिसे कहते हैं, जहां से हीट प्रोवाइड होती है उनकी बॉडी को, तो दैट इज अ ब्लबर पोर्शन ऑफ द फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। Then they have a layer of fat under the skin which is also protect them from cold. Now their paws are wide. Paws wide मतलब पंजे, जो उनके पंजे होते हैं बहुत वाइड होते हैं, so that they can easily move on the, or you can say walk on the snow. ठीक है, they are wide and large which help them to walk on a snow and to swim in water, and they easily swim in water. These are the paws. Okay. They have a strong sense of smell. उनकी स्मेल जो strong sense of, वैसे भी ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स की जो सेंस करने, स्मेलिंग पावर होती है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मोस्टली आपने द डॉग्स को देखा होगा, तो सेम इज द केस इन पोलर बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। नाउ विल टॉक अबाउट पेंगुइन्स। पेंगुइन्स की अगर हम बात करें तो आपने पेंगुइन्स देखी है, क्यूट लगती है ना, कितनी ज्यादा, कितनी प्यारी प्यारी लगती हैं। तो दीज पेंगुइन्स आर एक्वेटिक, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स हम इनको काउंट बर्ड्स में करते हैं, बट दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन अंटार्कटिका। आपको पता है ये कहाँ मिलते हैं, मैक्सिमम अंटार्कटिका में मिलते हैं। ठीक है, नाउ एडेप्टेशंस, again they have white colored body so that they do not easily visible in the snow. snow में दिखाई ना दे, अगर वो उल्टे हो जाएंगे तो व्हाइट कलर का पोर्शन ऊपर आएगा, ब्लैक पोर्शन नीचे हो जाएगा, तो they are not easily visible in the snow. Secondly, they have thick skin and a lot of fat to protect them from cold. Then if we'll talk about huddle, they huddle together to keep them warm. Huddle together means they move in a groups में move करते हैं वो, ठीक है, सभी इकट्ठे मिल के जाते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सके। एंड दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट, जैसे फिशेस के वेब्ड फीट होते हैं, आपने पढ़े हुए, ठीक है, इनके भी वैसे ही वेब्ड फीट होते हैं। एंड देयर वेब्ड फीट हेल्प देम इन, लाइक दीज आर द वेब्ड फीट, दीज हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर, ठीक है, हेल्प इन स्विमिंग, उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। Then heavy and solid bones make penguins heavier, अच्छा हेवी बनाते हैं, so that they can dive in water also, अच्छे से डाइव कर सके और नीचे से अपना वाटर के अंडर से, from they will get their food under the water. Okay, so that is these are the adaptations of penguins. Now we'll talk about polar birds. Polar birds are like Siberian cranes, Arctic tern. These are the polar birds. ठीक है, basically these birds survive in cold climate. बट इफ देयर इज अ हॉट सिस्टम, अगर कोई हॉट क्लाइमेट आ जाता है या हॉट समर आ जाता है या कुछ भी थोड़ा इनके हिसाब से क्लाइमेट करेक्ट नहीं होता, तो दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस वेयर देयर इज अ कोल्ड क्लाइमेट, बिकॉज दीज आर द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। यानी साइबेरियन क्रेन्स जो है वो पूरी की पूरी जब जहां उनको उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट लगता है वो वहां पे माइग्रेट हो जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। तो बर्ड्स इन पोलर रीजन कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होती है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 6 महीने 6 मंथ्स तक सन राइज नहीं होता, तो दैट मीन्स देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड। और अगर एक्सट्रीम कोल्ड है तो दीज साइबेरियन क्रेन्स एंड आर्टिक टर्न दे विल नॉट सर्वाइव देयर, सो दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, ओके, जहां पर कोल्ड होता है बट नॉट एक्सट्रीम कोल्ड इज देयर। तो that process is called as migration.
Then we have now the next topic is tropical rainforest. We'll study about now tropical rainforest. Tropical rainforest कैसे होता है? These rainforest कह लीजिए, they have a very hot climate. जैसे हमारे यहाँ का रीजन समझ लीजिए, they have very hot climate because they are near the equator. उनका जो पोर्शन होता है, जो इनकी लोकेशंस होती हैं, वो नियर द इक्वेटर होती हैं. सेकेंडली, इनका टेम्परेचर इन द विंटर सीजन दैट विल बी नॉट लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस. 15 से नीचे नहीं जाता. 15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द हॉट समर, यानी जब समर्स होते हैं, देन मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री से अबव रहता है इनका टेम्परेचर. Okay, if we talk about the region, their nights and days and nights are almost equal. ज्यादा फर्क नहीं होता है 1-2 आवर्स का, 4 आवर्स का, इससे ज्यादा नहीं होता. तो days and nights are almost equal. And the regions are also have a plenty of animals. इस रीजन में बहुत सारे plenty of rainfall, अच्छी बारिश होती है. Okay, they have a plan in this region. There is a plenty of rainfall. Now अगर हम इस रीजन में इंडिया के बारे में बात करें तो ये रीजन कहाँ पर है? दैट इज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द असम पोर्शन में. एंड इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स, देन इट इज साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में एंड सेंट्रल अफ्रीका. हियर इज द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स आर देयर. नाउ द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दीज आर मंकीज, एप्स, ऐसे वाले क्लाइमेट्स. ठीक है, एनिमल्स की बात है, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स विच यू हैव स्टडीड, जिसके बारे में आपने सुना है, देखा है. दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू विल फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ईच एनिमल वन बाय वन. Now the arboreal animals. What are arboreal animals? Arboreal animals are animals which live on trees, जो पेड़ों पर रहते हैं. And you know that the animals that live on trees are like monkeys, red-eyed frog. We will study in this module about monkeys. Monkeys का क्या adaptation है and red-eyed frog. Red-eyed frog मतलब इसका नेम क्यों है? Because इसकी eyes जो है वो रेड कलर की हैं. Okay. Then adaptation of red-eyed frog is what? This red-eyed frog lives on trees first of all. Okay. Secondly, इसकी जो यहाँ पे ये portion है, this it has a sticky pads. इसके sticky pads हो जाते हैं जो leaves के ऊपर आराम से stick हो जाते हैं. Okay, they have a sticky pads which help them to climb on a trees. Is it okay? Then the next adaptation is adaptation of monkeys. Monkeys, you know that they live on trees also. Okay, and they have a long tail. This is a long tail. This long tail is called as prehensile tail. This long tail is called as prehensile tail. What is prehensile tail? Which helps them in clinging on the, या फिर आप कर सकते हो अपने आप को लपेट लेते हैं आराम से, किस पे? ब्रांचेस पे. ट्री की ब्रांचेस पे वो अपने आप आराम से लिपट जाते हैं कि नहीं, इधर से ऐसे से. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ prehensile tail. और अगेन इट हैज हैंड्स एंड फीट. ये देखो ध्यान से, इसके हैंड्स एंड फीट, देयर हैंड्स एंड फीट ऑल्सो हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस. ब्रांचेस को होल्ड करने में, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है विच ये दे वांट टू ईट, उसमें हेल्प करते हैं. इज इट ओके? देन नेक्स्ट इज adaptation of lion-tailed macaw that you have listening first time. Beard ape जिसे हम कहते हैं lion-tailed macaw. ये अगर आप देख रहे हो ये white पोर्शन, इट इज बेसिकली अ सिल्वरिश पोर्शन, यानी उसके चिन के आसपास जो हेयर्स हैं, these are of silvery white silverish portion. That means the lion-tailed macaw mostly lives on trees. It also lives on trees. Its outstanding characteristic that silver white mane, that is called as silver white mane, which surrounds the head from cheeks down to the chin. आसपास इसके पूरे क्या होते हैं? सिल्वर व्हाइट कलर के मेन होते हैं, यानी हेयर्स होते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेयर्ड एप. इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स. जो ये क्या खाता है? ये यही चीजें खाता है. नाम तो इसका लायन से है, बट इट ईट्स fruits, leaves, stems, flowers, buds.
ओके, समटाइम्स इट ईट, कुछ टाइम, और ये मिलता कहाँ पे आपको, वेस्टर्न घाट्स पे, इज अडेप्टेड टू लिव इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है आपको। इज इट ओके इन इंडिया? नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशन ऑफ टाउकेन। टाउकेन हैज अ बिग बीक, बहुत बड़ी बड़ी उसकी बीक होती है। ये दिस इज अ बर्ड, एक बर्ड है जिसकी बहुत लंबी सी चोंच जिसे कहते हैं बीक होती है। टाउकेन हैज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स विद लॉन्ग, लार्ज एंड कलरफुल beaks. Toucan lives on trees. Again, they lives on trees. That is also again an arboreal animal. Okay. They make their nest in trees, hollows and holes. Except खोद के, इतनी बड़ी बीक है तो उससे क्या करते हैं वो लोग, अपने ये बर्ड्स अपनी नेस्ट बना लेते हैं थ्रू देयर बीक. ओके, with the holes and exacted by the other animals. They are primarily frugivorous. That means fruit eating है. And they prey upon the insects. फ्रूट्स को भी खाते हैं और इंसेक्ट्स को भी खाते हैं थ्रू देयर बीक. और इस बीक का एक और यूज करते हैं कि वो एक जगह बैठे होते हैं एंड दे यूज टू टेक फूड फ्रॉम द अदर ब्रांच. ओके, दैट मीन्स दे हैव अ लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस. दूसरी ब्रांच से भी ये अपना फ्रूट्स ले सकते हैं. तो दिस इज द यू कैन से फंक्शन ऑफ द बीक. पोर्शन इज द अडेप्टेशन इन एलिफेंट्स. Elephants basically are adapted to the conditions of the tropical rainforest. You have seen elephant parts. Different parts are there in elephant which helps in different portions. Like it has a trunk, long trunk, which acts as a nose. Then it has a pillar-like legs, ठीक है, which helps in balancing the body. इतनी bulky body है तो उसको कौन संभाल सकता है? These pillar-like legs also. Then it has a tusk here which helps in root the, you can say, uprooting the trees. Okay, then it has large ears which helps the body cool, body को cool करने में, और sound जो soft sound है वो सुनाई देती है due to these large ears. Okay, so these adaptations we are going to study of this elephant. Let the elephant has a long trunk which it is used as a nose की तरह उसको यूज करता है. एंड इट हैज अ वेरी ऑल्सो यूज्ड एज फॉर पिकिंग अप फूड. जो ट्रंक का काम है, इट यूज्ड टू पुल डाउन द फ्रूट्स, लीव्स, ये सब कुछ वो करता है. ठीक है, टू डिग आउट द फ्रूट्स फ्रॉम द, अंदर से पल्प तक अंदर से निकाल सकता है वो. किसी भी फ्रूट के अंदर से पल्प निकालना है तो दे इट यूज इट्स ट्रंक. ऑल्सो दिस ट्रंक एक्ट एज अ नोज सो दैट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सेकेंडली टस्क. अगर हम टस्क के बारे में बात करें तो टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प्स इट टू टीयर बार्क्स ऑफ द ट्री. बार्क्स मीन बोटी जो तना जिसे कहते हैं आप, जो स्टेम टाइप होता है मोटा सा, उसको आराम से ये टीयर कर सकता है. ठीक है, तो बार्क्स ऑफ द ट्री. देन इफ विल टॉक अबाउट लार्ज ईयर्स हेल्प्स इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड. बिल्कुल छोटा साउंड सुनने के काम आता है. सेकेंडली इट हेल्प्स इट्स बॉडी टू कूल, और यू कैन से इट रेगुलेट्स इट्स बॉडी टेम्परेचर. इसके बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब इतनी हैवी बॉडी है तो उसको टेम्परेचर को कूल भी तो रखना होगा. ठीक है, तो दैट इज बाय विद द हेल्प ऑफ दीज लार्ज ईयर्स. क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, रेगुलेशन होती रहती है, तो उसकी वजह से उसके जो ईयर्स है दैट विल हेल्प द बॉडी कूल. देन it has large legs, you can say pillar like legs which acts as a, किसकी तरह, which किस में हेल्प करते हैं वो pillar like legs जो है उसकी, वो हेल्प करते हैं उसकी बॉडी को बैलेंस करने में. यू हैव सीन एलिफेंट्स बॉडी इज टू हैवी, बहुत हैवी होती है, तो उसको बैलेंस करना जो है वो कौन करता है? वो पिलर लाइक जो लेग्स, 4 लेग्स उसकी पिलर की शेप में बनी हुई है, दे विल बैलेंस द बॉडी ऑफ एलिफेंट. नाउ नेक्स्ट इज lion. Adaptation in lions and tigers. You have already studied about them. Lions जो है they are brown in color. Tigers have a lines on their body also with a brown color. Okay, so they have a thick brown skin which help them to hide easily in the forest. कहाँ पे फॉरेस्ट में? जो आपके ब्राउन कलर के ही जो ब्रांचेस होती हैं, जो आपके नीचे होते हैं, तो वो आराम से उसके अंदर हाइड हो सकते हैं. अपने किसको देख सकते हैं आराम से? अपने प्रे को. ओके, दे हैव अ सेंसिटिव हियरिंग, मतलब बहुत छोटी सी आवाज भी होती है तो उनको आराम से सुन सकती है. तो सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स
एंड टू कैच देयर प्रे, यानी अपने शिकार से बच सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू देयर ईयर्स, दे हैव अ सेंसिटिव हियरिंग एज वेल एज दे हैव अ वेरी यू कैन से शार्प आई साइट, ऐसे कॉर्नर्स में होती है इनकी आई साइट, सो दैट कि ये चारों तरफ आराम से उस तरफ देख सके, साइड्स पे भी देख सके और इधर उधर भी देख सके, पता चल जाए इनको कि साइड्स पे भी कोई प्रे तो नहीं है या कोई प्रीडेटर तो नहीं है इनके। ठीक है, तो दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ लायंस एंड टाइगर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स।